Good morning, my dear children. I welcome you all in Sanskriti virtual class of class 12th. And today we are studying the chapter solution, and some topic which we are taking in this class is vapor pressure of liquid solution and vapor pressure of solid and liquid solution, and some more topics will be there. That means that Raoult's law and all. Okay. So here comes the topic that vapor pressure in liquid solution means here we talking about that solute and solvent both are in liquid form. So to understand what is vapor pressure, firstly I explain you these things. Suppose we are having one chamber in which only solute is present. So what will be the surface area of this? The surface area will be of solute only. Yes or no? Suppose मेरे पास एक चेम्बर है, उस चेम्बर पर मैंने सॉल्यूट भर रखा है, तो इसके अंदर ये जो लिक्विड की सरफेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? Only of solute, not of any other object. Okay, so we have learned this thing that the thing which is having more surface area will evaporate more. जिसका surface area ज़्यादा होता है वो evaporate ज़्यादा होता है. ठीक है? So here we are talking about solute only. So we'll call it pure solute. इसको हम क्या बोलते हैं? Pure solute, or we can call it component 1 also. अब इसके अंदर भी एक कंडीशन होगी. वन कंडीशन इज देयर व्हेन वी हीट इट अप. जब हम इसे हीट करेंगे सो एट वन पॉइंट व्हाट हैपन, जैसे ये हीट करेंगे तो ये वेपर्स कहाँ जाने लगेगी? ऊपर जाने लगेंगी. जा रही है भाई. बट एट वन पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर जब हम इसको हीट करेंगे सो व्हाट हैपन, वन वेपर कम एंड फॉर्म लिक्विड and one liquid go and form vapor. मतलब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा. क्या क्रिएट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा. ठीक, उस कंडीशन में क्या होगा? एंड ऑन दैट कंडीशन सो द वेपर प्रेजेंट इन दिस एरिया, ये जो एरिया में प्रेजेंट वेपर है, इट गो अप्स एंड कम बैक अगेन टू दिस लिक्विड सरफेस. इस लिक्विड की सरफेस पे वापस आएगा और क्या क्रिएट करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा. दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर? वेपर pressure is the presence pressure applied by vapor on its own liquid surface. Okay, now what I am taking, when component 1 means solute is in its pure form, so we call it P1 naught. P1 naught we are indicating vapor pressure applied by pure solute. If I talk about in the term of solvent, procedure are same. We'll take one chamber and we'll put all the solvent in one chamber in a pure form. Yes, and also equilibrium will be created in this also. Okay, pure solvent, surface area greater and vapor will be also greater. और जो वेपर बनेगी वो वापस सरफेस एरिया पे आके प्रेशर क्रिएट करेगी. बट it will be of solvent only. It will be of solvent only. So we indicate it with P2 naught, means vapor pressure applied by pure solvent. Now coming to the next point, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, बताना क्या चाह रही हूँ about water vapor liquid, vapor pressure liquid in liquid solution. Now what I have taken, I am writing here that both the components are volatile. अगर मुझे वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड निकालना है तो दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल होने चाहिए. मीन्स वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है मैम? यू कैन सी liquid which can easily converted into vapor form
ऐसा लिक्विड जो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल। अब आई हैव टेकन वन चैम्बर, in this I mixed component 1 and component 2 means solute and solvent. When I mix it, then also equilibrium is created. तब भी equilibrium create होगा, equilibrium create हो गया, but the thing is different. What the difference? Different is that जो वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में लग रहा था वो वेपर प्रेशर अभी लगने वाले वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? यू कैन सी जब कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में था उसका सरफेस एरिया क्या था? ज़्यादा। नाउ दे आर इन सॉल्यूशन फॉर्म, इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल हैं और साथ में आपके सॉल्वेंट के भी पार्टिकल हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर देयर, तो सरफेस एरिया दोनों का क्या हो गया? कम। जब कम हुआ तो प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। दैट्स वाई इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे? इसको हम इंडिकेट करते हैं P1 और P2 से, और इनको P1 P2 नॉट से। अंडरस्टूड? अब आती है बात आगे। वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्यूट दैट इज P1, वेपर प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट दैट इज P2। नाउ this also I told you that P1 naught is always greater than P1, P2 naught is also greater than P2. Okay, now vapor pressure of the solution. What about the vapor pressure of the solution? So ये जो चेम्बर है इसके अंदर प्रेशर दोनों के पार्टिकल्स लगा रहे हैं ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो दोनों का प्रेशर टोटल करेंगे तभी तो हमें टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर पता चलेगा। सो व्हाट विल डू PS इक्वल टू P1 प्लस P2 मीन्स दोनों के प्रेशर को जोड़ दो तब हमें निकल आएगा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। इजंट इट? इतना हमें समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द राउल्स लॉ। व्हाट राउल्स वांट्स टू से? राउल्स क्या कहना चाहता था मुझसे? Raoults wants to say that Raoults कहना चाहता था कि that for solution of volatile liquid the partial pressure of each component means solute और solvent के जितने भी component हैं is always directly proportional to the mole fraction present in this liquid. फिर से सुनो क्या कहना चाह रहा था? He was trying to say that जितने भी मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के होंगे उतना ही प्रेशर इस पर क्रिएट होगा। अब हमारे पास हेनरी लॉ भी यही कहता था, प्रेशर इंक्रीज मोल फ्रैक्शन, यस और नो? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हियर ऑल्सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब आगे आते हैं। You can see I have taken one value of solute I have taken, it is directly proportional to mole fraction of solute, and when I'll replace this direct proportional sign so I'll get P1 naught, and here is my first equation. You can see P1 is vapor pressure applied by solute in solution and mole fraction, and P1 naught is vapor pressure applied by pure solute. अब आगे mole fraction. What about mole fraction? Tell us about how much amount of solute or solvent present in solution. Yes, ये मुझे पता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज C मीन्स हमने दोनों के टर्म में लेना है। पहले हम सॉल्यूट के टर्म में निकाल लेंगे, फिर हम सॉल्वेंट के टर्म में निकाल लेंगे। मैंने सॉल्वेंट के टर्म में भी वैसे ही निकाला, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, P2 इक्वल्स टू P2 नॉट X2, और मैंने इसको निकाल लिया। इफ डाल्टन्स कम, अब डाल्टन की बारी आती है। सो डाल्टन सेड दैट कि जब मैं किसी भी चेम्बर में दो अलग अलग ग्लासेस को बंद करता हूँ और प्रेशर निकालता हूँ, टोटल कितना होगा?
तो वो गैस 1 और गैस 2 के प्रेशर को जोड़ने के बराबर होगा. Here also we already studied कि PS equals to P1 plus P2 होगा. Now I can replace this value by this, है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, PS equals to P1 not X2 plus P2 not X2. Understood? चलो. Here we completed with Raoult's law. Here is the graph of Raoult's law. You can see it. इसको देख सकते हो. What I have doing this in this I have taken one graph. इस ग्राफ में जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ वाला पॉइंट x1 यानी कि इसकी वैल्यू मैंने 1 ले ली, x2 की वैल्यू मैंने 0 ले ली, और जब मैं यहाँ से यहाँ चल रही हूँ x1 की वैल्यू कम होती जा रही है, x2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है. तो एट दिस पॉइंट x1 1 है, यानी कि ये अभी सॉल्यूशन में मिला नहीं है. तो सॉल्यूट क्या होगा, P1 नॉट. एज इट इज यहाँ पर जब सॉल्वेंट यहाँ पर है तब उसकी वैल्यू 1 है, तो इट मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, P2 नॉट. उसी के बेस पर जब मैं ग्राफ लूंगी तो मुझे यहाँ पर एक ग्राफ मिलेगा. है ना. तो हमने क्या किया, हमने ये ले लिया कि x1 इस साइड हम 1 ले लेते हैं और x2 हम इस साइड 1 ले लेते हैं. तो मेरे लिए दोनों की वैल्यू निकल आई कि जब मैं इधर से इधर के लिए ले रही हूँ तो यू कैन सी x2 इज इंक्रीजिंग, और जब मैं इधर से इधर ले रही हूँ तो x1 की डिक्रीज हो रही है. बट जो ये वाला लेवल है ये सॉल्यूशन का लेवल है. एट दिस पॉइंट हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन दे रहे हैं. तो इस एरिया में जो भी वैल्यू होगी इस बार की और इस बार की वो P1 और P2 होगी, P1 नॉट और P2 नॉट नहीं होगी. ओके. नाउ हमने बात कर ली कि मोल फ्रैक्शन होंगे किसके, मोल फ्रैक्शन की हमने बात कर ली, लेकिन वो मैंने किसकी बात करी, इस सॉल्यूशन के अंदर. सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन जो होंगे उनसे रिलेटेड होगा प्रेशर. बट हैव यू थिंक अबाउट दिस दैट व्हाट अबाउट दीज मोल्स एंड फ्रिक्शंस ऑफ दिस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो वेपर में है, जो वेपर में है उनके हम मोल फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे. तो उनके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये, P1 इक्वल्स टू Y1 P टोटल, P2 इक्वल्स टू Y2 P total. Y1 is indicating mole fraction of solute and Y2 is indicating mole fraction of solvent. Okay. Now we are moving forward for the next topic, that is of vapor pressure of solid in liquid. इसको भी हम इसी टर्म में इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. कैसे, I am having one pure solvent, वही conditions, वही procedure. जब प्योर है तो PA नॉट, वही प्रेशर लगाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है. लेकिन जैसे ही मैं इसको सॉल्यूट के साथ मिक्स करूंगी और सॉल्यूशन बनाऊंगी, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा. बट यहाँ जब वी टेक सॉलिड इन लिक्विड, द नॉन वॉलेटाइल सॉलिड विल बी देयर. नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मीन्स यहाँ पर जो सॉलिड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा. Means the vapor we are finding here is only of solvent. सिर्फ किसकी है, सॉल्वेंट की है ना. ठीक है. तो अब एक बात बताओ, क्या इससे इसमें डिफरेंस होगा कि नहीं होगा प्रेशर में? ऑफ कोर्स होगा. क्यों, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर यहाँ पर वेपर जो बन रही थी वो ज़्यादा बन रही थी. लेकिन यहाँ पर भले ही सरफेस एरिया कम हो गया, यहाँ सरफेस एरिया इसका कम हो गया, भले ही वेपर बना रहा है सॉल्वेंट, बट सरफेस एरिया इज लेस क्योंकि सॉल्यूट इज देयर. तो जितना कम सरफेस एरिया उतना ज़्यादा वेपर कम बनेगा. तो जब कम वेपर बनेगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बट दे आर आस्किंग कि हम इस प्रेशर को कम कर लिया है जो हमने, उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हाउ वी कम टू नो व्हाट प्रेशर इज.
डिक्रीजिंग, तो उसको निकालने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला. उन्होंने क्या किया, वी कैन टेक आउट. अब देखो, आई नो दैट पी ए नॉट इज ग्रेटर दैन पी ए, ज़्यादा है, और पी ए की वैल्यू हम ये निकाल सकते हैं, आई नो. तो मैंने डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ए नॉट में से जब मैं पी ए निकालूंगी तभी तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस. तो मैंने इसको लिख दिया. अब पी ए की मुझे वैल्यू पता है, क्या है ये, आई पुट दिस वैल्यू हियर एंड आई कैन टेक कॉमन पी ए नॉट हियर एंड आई गॉट दिस वन आई गेट, मुझे ये मिल जाएगा. एंड वी नो कि आई विल कीप एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1. यहाँ से मुझे एक्स बी की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स आई विल पुट एक्स बी ऑन द प्लेस ऑफ 1 माइनस एक्स ए, मैं उसकी जगह पर ये रख दूंगी. अब आगे देखिए, सो हमारे पास ये निकल कर आ गया फॉर्मूला ऑफ डेल पी, डिफरेंस ऑफ प्रेशर. अब यू कैन फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ प्रेशर बाय दिस ऑल्सो, बाय दिस ऑल्सो, बाय दिस ऑल्सो. ठीक है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हो ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स ऑल्सो वी कैन टेक इट आउट. ठीक है, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं. अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकाल दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगी. इफ आई वांट टू टेक अ मॉलिक्यूलर मास और वेट, सो आई विल पुट दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी फॉर इजी. अब आते हैं Rawls law as a case of Henry's law. I think you are knowing this very well. In Henry we are talking about gas and liquid. Solute is gas and liquid is solvent. And but in Rawls law we are talking about solution, that is of solute and solvent both are liquid. ठीक है, तो इससे ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, because we already studied it properly. Now coming to the ideal and non-ideal solution. What is ideal solution? In simple way they are saying that solution which obey Raoult's law under any condition, that is called ideal solution. Is this possible to be ideal? Ideal solution होता है? No. बहुत रेयर कंडीशन में होता है, वैसे रेयर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता. मैम फिर ये कह क्यों रहे हैं? So they are saying because of this. Ideal solution have two other important properties. दो other important properties होती हैं, वो क्या होती हैं? Del V mix equals to 0, del H mix is equal to 0. मतलब del V का मतलब no change in volume after mixing solute and solvent. Means जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता. इसी तरीके से जब हम किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो रिएक्शन की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता. मतलब ना तो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ना ही कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. दिस दे आर ट्राइंग टू से अबाउट आइडियल solution. But no real solution is ideal solution. कोई भी real solution ideal solution नहीं है. अब मैं टर्म तुमको डेल V इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, डेल H इक्वल्स टू 0 कैसे होगा, इसको समझाने की कोशिश करती हूँ. ये रहा मेरे पास सॉल्यूट और ये रहा मेरे पास सॉल्वेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट डेल H. ओके, suppose A bond A and B bond B having a strong bond between us themselves. बहुत अच्छा strong intermolecular bond है इन दोनों के बीच में. तो जब ये दोनों अपना बॉन्ड तोड़ते हैं ना, तो इससे कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है. तो ये A बॉन्ड A ने जब अपना बॉन्ड तोड़ा तो इससे भी एनर्जी रिलीज हुई. बॉन्ड बी ने अपना बॉन्ड तोड़ा, इससे भी एनर्जी रिलीज हुई. बट जो ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, द एनर्जी विच दीज टू आर रिलीजिंग विल ऑब्जर्व्ड टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी. विल ऑब्जर्व टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी. अंडरस्टूड?
तो इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ए बॉन्ड ए से जो एनर्जी निकली, बी बॉन्ड बी से जो एनर्जी निकली, वही एनर्जी ए बॉन्ड बी बनाने में यूज कर ली गई। मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दी और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर नहीं निकली। दैट्स वाई एंथैल्पी इज जीरो, इसीलिए डेल एच हो गया जीरो। अब हम वॉल्यूम के टर्म में समझते हैं। वही बात, ए बॉन्ड ए के बीच में जितना स्ट्रॉन्गेस्ट, जितना अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थी, उतनी ही बे और बी के बीच में थी। और इनसे जब ए बी बना और उसमें भी उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग थी। तो बॉन्डिंग अच्छी है तो मतलब बॉन्ड में कोई रिपल्शन नहीं हो रहा, अट्रैक्शन ही हो रहा है। जब अट्रैक्शन हो रहा है तो व्हाट इज गोइंग ऑन, ओनली दे आर मीटिंग सेम डिस्टेंस ऑफ बॉन्डिंग, सेम डिस्टेंस की बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है। This was the concern of ideal solution and del V and del H. Now we are coming to the next thing. C. The intermolecular force between A dash A and the B dash B is exactly same and A and B. In which condition? In ideal solution. So perfect ideal solution is rare, but some solutions are nearly ideal in behavior. Example: solution of hexane and heptane, bromoethane and chloroethane, benzene and toluene. Now we are coming to the non-ideal solution. What are non-ideal solution? अब इसको समझने के लिए एक चीज समझो, कोई चीज मैंने पेपर पे सॉल्व करी, कैलकुलेशन लगाई, कुछ सॉल्व किया, but when I go in lab and I'll do practice and do practical, so what happened? In practical we do observation. In practical we do observation and on paper we do calculation. जब मैंने थ्योरेटिकली किसी चीज को प्रूव किया, कैलकुलेशन की, और जब मैंने प्रैक्टिकली किसी चीज को देखा, ऑब्जर्व किया, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट निकले। ये दोनों आपस में क्या निकले? डिफरेंट निकले। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इफ वी आई टॉक अबाउट ओनली आइडियल सॉल्यूशन, तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से व्हाट हैपन, दीज टू डिफर, एक दूसरे से डिफर करते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरीके से डिफर कर सकते हैं। कैसे? या तो थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा हो ऑब्जर्व से, या फिर ऑब्जर्व्ड ज्यादा हो थ्योरेटिकल के। और इस कंडीशन में हमारे पास दो डेविएशन आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब बनता है? जब थ्योरेटिकल कम हो ऑब्जर्व से, यानी कि ऑब्जर्व्ड की वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा है। और नेगेटिव कब बनता है? जब थ्योरेटिकल की वैल्यू ऑब्जर्वर से ज्यादा है। चलो अब मैं बताऊंगी कैसे। क्या ऐसा संभव है कि जो भी हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जो भी हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, सब में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही हो हमेशा? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल तो नहीं है। और या फिर ऐसा है कि सेम ही सेम लूज बॉन्डिंग हो, ऐसा डिफरेंस है? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दोनों में बॉन्डिंग या तो स्ट्रांग ही होगी और बनने वाले सॉल्यूशन में भी स्ट्रांग हो, या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में दोनों में बॉन्डिंग वीक होगी और बनने वाले सॉल्यूशन में वीक हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि सपोज आई हैव टेकन वन सॉल्यूशन ए बॉन्ड ए एंड वन सॉल्यूशन बी बॉन्ड बी। बीच ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, और इन दोनों के बीच में है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। किसके? ए और बी के बीच में। बट इन दोनों से बनने वाला जो सॉल्यूशन है ना, वो भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करता। तो जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करेगा तो भाई दूर भागेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया वीक। क्या हो गया? वीक हो गया। वीक हो गया ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्यों? बिकॉज दीज डू नॉट लाइक ईच अदर।
अब यहाँ पर हुई कैलकुलेशन उल्टी की नहीं हुई? अब कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ ए जो है अपने बॉन्ड से एनर्जी रिलीज करेगा, बी बॉन्ड जो बी है अपने बॉन्ड से एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ए और बी तो बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहते, तो इन दोनों के लिए से रिलीज एनर्जी इनको बॉन्ड बनाने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में बॉन्ड बनाना नहीं चाहते। तो जब कोई चीज़ अपने आप नहीं होना चाहती तो उसको हमें फोर्सली करवाना पड़ता है, और जब हम फोर्सली करवाने की बात करेंगे मतलब हमें बाहर से कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो हियर एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस। तो क्या ये डेल एच 0 के बराबर हुआ? नो, क्योंकि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं तो डेल एच 0 से ज़्यादा हो जाएगा। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो तुम्हें पहली टर्म समझ में आ जाना चाहिए कि जब ए और बी के बीच में रिपेलिंग हो रही है तो ऑटोमेटिकली इनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है, तो स्पेस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इन दिस टर्म वी कैन अंडरस्टैंड नेगेटिव डेविएशन ऑल्सो। सपोज मेरे पास ए और बी है, जो उनके बीच में ऑलरेडी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत वीक है। क्या है? वीक है, ऑटोमेटिकली वीक है। बट इनसे बनने वाला जो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब क्या हुआ, जब मैंने ए बॉन्ड ए ने जो एनर्जी निकाली, बी बॉन्ड बी ने जो एनर्जी निकाली, वो ए बॉन्ड बी के लिए बहुत ज़्यादा थी, तो वो क्या करने लगेंगे? एनर्जी रिलीज बाहर निकालने लगेंगे। तो ये रिएक्शन हो जाएगी एंडो एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल एच हमेशा नेगेटिव होता है। और ये आपस में क्या है? बॉन्ड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो हियर आई come to my class today and will meet you in next class soon. Thank you.